Hello everyone. We have completed chapter 1. Now we are going to start chapter 2. This is the very first video of this chapter. In this video we are going to cover these topics. Basically the name of chapter is encoding schemes and the number system, and we'll cover in this chapter the introduction of the number system and the one coding scheme that is called American Standard Code for Information Interchange, and in the short it is called as ASCII. And then we'll discuss about the Indian Standard Code of Information Interchange or Indian Script Code of Information Interchange. Then we'll discuss Universal Code, and then we'll talk about some number systems. Basically there are 4 number systems, and in this lecture we'll discuss these two, the decimal number system and the binary. In the next one we'll discuss the octal number system and the hexadecimal number system. So let's start. The encoding scheme and the number systems. Have you ever thought how the keys on the computer keyboard that are in the human recognizable form are interpreted by the computer system? This section briefly discusses text interpretation by the computer. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि this is the responsibility of the input and output devices to convert data from one form to another form. Means the input devices are responsible to take the data from the user or from the environment and convert it into the computer acceptable or the understandable format. Means if you press a key on the keyboard, the first it is converted into the number system that is not acceptable or the understandable by the computer. Like if you press capital A or any character, there is a decimal number system equivalent like 65, 64, 84, like that, which key we press basically. And then this number converted into the equivalent binary number system, which is understandable by the computer. In the same way, other input devices also works. They take the data in another format and then convert it into the computer understandable format. And the same happens with the output devices also. The output devices receive data from the computer in the 0 and 1 form, that is in the binary format, and then it converts into the human recognizable or the understandable format, like in the text, in the digits, in the audio, in the video, in the sound form, like that. Basically everything is stored in the computer in 0 and 1 form only. So output devices receive data in the 0 and 1 form and converts it into the understandable form by the users, and input devices converts the data taken by the input taken by the user and converts it into the machine understandable format. So how it happens basically we'll discuss in this chapter. We have learned in the previous chapter that the computer understands only the binary language, that is 0 and 1s. Therefore, when a key on the keyboard is pressed, it is internally mapped to a unique code, which is further converted to the binary number. Basically, there are two conversions. First in the decimal number, then after the decimal it converted into the binary one. एक एग्जांपल देखते हैं और समझ में थोड़ा सा आएगा. When we press capital A, it is internally mapped to a decimal value, that is 65 code value, which is then converted to its equivalent binary value for the computer to understand. मीन्स जब आप कीबोर्ड पे A प्रेस करते हैं तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है 65 में और फिर 65 किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी इक्विवेलेंट में. बाइनरी इक्विवेलेंट. बाइनरी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा मैं अभी लिख भी दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा. जब हम समझ लेंगे बाइनरी फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको 65 क्या होता है. Like A converted into the map to 65, then this is basically equivalent of the 65. Similarly, when we press alphabet A, that is in a Hindi script,
on the Hindi keyboard. Internally it is mapped to hexadecimal value, that is this. जो यहाँ 65 हो रहा था इंग्लिश का कैपिटल ए, अभी हिंदी का अ किसमें मैप हो जाएगा 0905 में, और उसके बाद फिर अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी, whose binary equivalent is this, ये कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज इनकोडिंग, बेसिकली ये कैसे हो रहा है यही हम लोगों को आगे समझना है. So what is encoding? The mechanism of converting data into an equivalent cipher using a specific code is called encoding. Encoding यही होती है. It is important to understand why code value 65 is used for the capital A and not any other value. It is same for all the keyboards irrespective of their makes. चाहे आपका कीबोर्ड इंडिया का हो, चाइना का हो, फ्रांस का हो, जापान का हो, कहीं का भी होगा कीबोर्ड, उसका जो ए होगा वो 65 में ही कन्वर्ट होगा कैपिटल का ए. ओके, अगर इंग्लिश में वो काम कर रहा है तो. अगर हम फ्रेंच में, जापानीज में करेंगे तो उनके अल्फाबेट्स अलग होंगे, उनके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड अलग होंगे. लेकिन अगर हम इंग्लिश में काम करेंगे तो वो हर जगह पर सेम ही आएगा. It is same for all the keyboards. This has been possible because of the standard encoding scheme. Standard encoding scheme where each letter, numerals and symbols is encoded or assigned a unique code. Some of the well-known encoding schemes are described below. बेसिकली क्या होता है, अभी आपको आगे समझ में आएगा. पहले इनिशियली ऐसा नहीं था, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग कोडिंग होती थी. अमेरिका ने कोडिंग की ए के लिए अलग, रसिया ने कोडिंग की ए के लिए अलग, कोई ब्रिटेन ने कोडिंग की ए के लिए अलग कोडिंग किया. सबकी कोडिंग अलग अलग, 101110 लेट इट इज. यहाँ पर कर दिया इसने 101010 लाइक दैट ऐसे, और यहाँ से इसने कोडिंग किया 10111011 लाइक दैट. बेसिकली ऑल आर द ए कैपिटल ए ओनली. बट जब ये हमने कम्युनिकेट किया, इसको भेज रहे हैं, तो ये इसके यहाँ इसकी कोडिंग कुछ और है, यहाँ पर इसकी कोडिंग कुछ और है, ये मिसमैच हो गया. इसलिए हमने क्या किया कि एक यूनिवर्सल कोडिंग होनी चाहिए कि हम कहीं पर भी अगर कम्युनिकेट करें तो वो हमें सेम इनपुट आउटपुट मिलना चाहिए, कहीं डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ये कोडिंग अगर कहीं पर यूएस की है तो यहाँ की यही कोडिंग रसिया की है, यही कोडिंग यहाँ पर ये ब्रिटेन की है. लेकिन ये कोडिंग जो ए को मिला है, हो सकता है कि रसिया में इस कोड का कोई अलग मीनिंग हो, ब्रिटेन में इस कोड का अलग मीनिंग हो. जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो डेटा मिसमैच हो जाता है. इसलिए हमारा आ गया क्या, एक ऐसी कोडिंग आ गई जो कि हर एक कैरेक्टर को यूनिक कोड प्रोवाइड कर दे. उसी में से एक आता है हमारा कोडिंग. समझते हैं अब कौन कौन सी कोडिंग स्कीम्स हैं. बहुत सी हैं, लेकिन हमको सब नहीं समझना है, कुछ स्पेशली समझने हैं. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज ASCII. In the early 1960s, computer had no way of the communicating with each other due to the different way of the representing keys on of the keyboards. यही इशू था, अलग अलग जगह पर अलग अलग कोडिंग होती थी, इसलिए कम्युनिकेशन में नहीं यूज होता था. Hence, the need for a common standard was realized to overcome these shortcomings. Thus, encoding scheme ASCII was developed for the standardizing the character representation. ASCII is still the most commonly used coding schemes. अभी भी ये यूज होता है, बेसिकली और भी कोडिंग्स यूज होती हैं, हम समझते हैं. Internally, ASCII used initially it was a 7-bit code. 7-bit कोड का क्या मतलब हुआ, किसी भी कैरेक्टर को कोडिंग के लिए हम मिनिमम क्या यूज करते थे, 7 बिट देते थे उसको. अब वो 0-1 का कॉम्बिनेशन होता था 7 बिट to represent characters. Recall that there are only 2 binary digits, 0 or 1. Therefore, total number of different characters on the English keyboard that can be encoded by 7-bit ASCII is 2 की पावर 7, that is 128. ये 128 कैसे हुआ भाई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. सपोज वी हैव ओनली 2 डिजिट्स हैं, तो दोनों डिजिट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है, या 1-1 हो सकता है. यही तो टोटल ये कितना हो गया, 4 हो गया. अगर इसको आप लेंगे तो 2 की पावर हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 इक्वल टू 4. अगर हम ऐसे ही 3 डिजिट की कोडिंग ले लें तो 3 डिजिट की कोडिंग में क्या हो पाएगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको 7 बिट का समझ में आ जाएगा.
3 बिट का कोडिंग होगा तो ये होगा 0000001 011101011101111. Yes, 4 4 this is the totally 8 combinations. तो 2 की पावर हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 3, दिस इक्वल टू 8. ऐसे ही कैलकुलेट हो सकता है. अगर हमारे पास 7 बिट होंगे डिफरेंट डिफरेंट 7 बिट्स हो सकते हैं तो 7 बिट के कॉम्बिनेशन हम कितने बना सकते हैं 2 की पावर 7 इक्वल टू 128. The table 2.1 shows some printable characters for ASCII code, but ASCII is able to encode character set of English language only. ये अमेरिका में यूज होता था तो ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही यूज होता था. जैसे कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गए, ये उनके डेसिमल वैल्यूज इक्विवेलेंट हो गया. इधर कैरेक्टर सेट्स हैं, ये उनकी डेसिमल वैल्यूज हो गए. स्मॉल लेटर्स हो गए, उनकी डेसिमल वैल्यूज हो गए. ये वैल्यूज थी. उसके बाद फिर अगर आपको ब्रैकेट लगाना है, आप कीबोर्ड पे ये प्रेस करते तो इंटरनली कन्वर्ट होता है ये 41 में, फिर उसका क्या बनता बाइनरी. ऐसे ही बनता था ये अमेरिकन. तो अब इनको यूज करके करना है इनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द इनकोडेड वैल्यू इनटू द बाइनरी 1. कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. आज की वैल्यू ऑफ डी इज 68. आप यहाँ से देख सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या है भाई. डी की वैल्यू कैपिटल डी की वैल्यू है 68. ऐसे ही सबकी वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो डी की वैल्यू 68, ए की वैल्यू 65, टी की 84, ए की 65 हो गए. और उनके इक्विवेलेंट बाइनरी ये होगा. कैसे होगा ये अभी आपको समझ में आएगा. बाइनरी कैसे हम बना लेंगे तो डेटा का इक्विवेलेंट कोड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. ठीक है. नाउ द इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज इसको कहीं कहीं इंडियन स्टैंडर्ड भी मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि इंडियन स्क्रिप्ट है कि इंडियन स्टैंडर्ड है. ठीक. इंडियन अल्फाबेट्स के लिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द कंप्यूटर्स, अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स कॉल्ड ISCI was developed in India during the 1980s. इट इज 8 बिट इनकोडिंग. 8 बिट अगर 7 में था तो 7 में था हमारा तो 128, तो 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 256. राइट. रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडियन विच मीन्स इट कैन रिप्रेजेंट दिस मच कैरेक्टर्स. इट रिटेन्स ऑल 28. तो ये 256 में क्या किया इसने, पहले तो 128 पूरे पूरे ASCII वाली कोडिंग ले ली. उसके आगे से फिर हमारे जो हिंदी अल्फाबेट्स थे उनको फिर कोडिंग की गई है. ये समझना है आपको कि जो अमेरिकन, हम हिंदी में इंग्लिश को भी यूज कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश में हिंदी को नहीं यूज कर सकते. उस कोडिंग अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यूज कर रहे हैं तो उसमें हिंदी की कोडिंग नहीं हो सकती. लेकिन अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड इसकी कोडिंग यूज कर रहे हैं तो हिंदी की भी होगी, साथ में हमारे अमेरिकन ये इंग्लिश की भी हो सकती है. Code and use the rest of the codes 128 for the additional Indian language character sets. Additional codes have been assigned in the upper region, that is 168 to 255 for the अक्षराज of the language. हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं उनको 160 के अबव वाले जो कोडिंग है अप टू 255, उन कोडिंग्स को यूज किया गया है. वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. तो दो कोडिंग हो गए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड इंडियन स्टैंडर्ड. अभी क्या हो गया, एक यूनिकोड आया. क्यों इसकी नीड आई वो भी यहीं पर है क्लियरली. देयर वेर मेनी इनकोडिंग स्कीम्स फॉर द कैरेक्टर सेट्स ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. हमने हिंदी के लिए अलग कोडिंग बना लिया, इंग्लिश के लिए अलग बना लिया, फ्रेंच के लिए अलग बना लिया, अभी फ्रेंच के लिए अलग बना लिया, जापानीज के लिए अलग बना लिया, सबके लिए बन गया. बट व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट, when we want to communicate one language to another language, it is not possible because of the different character sets. So need arise for the universal coding. Universal coding में क्या हो गया भाई, there were many encoding schemes for the character sets of the different language but they were not able to communicate with each other as each of them represented characters in their own ways. Hence text created using the encoding schemes was not recognized by another machines using different encoding schemes. Therefore, a standard called Unicode has been developed to incorporate
all the characters of every written language of the world. A Unicode provides a unique number of the each character irrespective of the device, server, desktop, mobile, operating system, Linux और सॉफ्टवेयर. इट मीन्स क्या हो गया कि यूनिकोड में अगर कोई कोडिंग ए को मिल गई है तो वो कोडिंग अब और वर्ल्ड वाइड किसी कोडिंग को, किसी कैरेक्टर्स को नहीं मिलेगी. ऐसे ही हिंदी के अगर अ को एक कोडिंग अलॉट हो गई है, जो भी कोडिंग है, तो वो वर्ल्ड वाइड और किसी लैंग्वेज के किसी भी कैरेक्टर सेट को नहीं मिलेगी. तो दैट वाज द इनकोडेड इन द यूनिकोड. ओके, सो कॉमनली यूज यूनिकोड इनकोडिंग्स आर UTF-8. ये UTF क्या होता है? ये होता है बेसिकली यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट. ये है इसका फुल फॉर्म. UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32. इसका मतलब ये है कि कुछ कोडिंग यूनिकोड की 1 बाइट की है, कुछ कोडिंग क्या है 2 बाइट की है, और कुछ क्या है 4 बाइट की है. राइट? ये UTF-8, UTF-16 है, UTF-32. ये 8, 16 और 32 का मतलब यही है. UTF-8 क्या करेगा? किसी कैरेक्टर को, सपोज करो वी हैव टू इनकोड ए, तो ए के लिए अगर कोडिंग हमारी 1 बाइट में हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए 2 बाइट एलोकेट किया जाएगा. अगर ऐसे ही कैरेक्टर को लाइक दिस 1 बाइट, ये 1 बाइट 2 बाइट में हो गया. अगर किसी कैरेक्टर की कोडिंग 1-2 बाइट्स में नहीं आ पा रही तो उसके लिए हम 4 बाइट्स यूज कर लेंगे, लेकिन 3 बाइट्स नहीं हो सकता. ये होगा आइदर 1 बाइट का या 2 बाइट का या फिर 4 बाइट का. It just means by using UTF we can encode any character of the word wide. Same with the UTF-16 we can encode any character of the word wide, and for by using UTF-32 also we can encode any character of the word wide. बट ये क्या होगा, UTF-8 को हो सकता है उस कैरेक्टर के लिए 2 बाइट अलग अलग बाइट्स देना पड़े, अलग अलग बंच ऑफ बाइट्स. UTF-16 में 1 देना पड़े, हो सकता है UTF-32 में भी 1 देना पड़े. इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे वी हैव ऑप्शन टू बिल्ड हाउस. हमने क्या किया, छोटे छोटे ब्रिक्स बना लिए हैं. अब मुझे जितना एरिया कवर करना है उसके ढंग से हमने ब्रिक्स को ले लिया. अगर मुझे एक ही ब्रिक की साइज की चाहिए तो हमने ये ले लिया, उससे ज़्यादा साइज चाहिए तो इसको, इसी का ब्रिक को 2 ले लिया, या फिर हम इसका 1 ले सकते हैं, या फिर 4 बाइट्स इसको ले सकते हैं, या फिर 1 बाइट इसका ले सकते हैं. ओके, सो हियर इज सम कोडिंग स्कीम ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड. इसको समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग बात करेंगे. ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल कोडिंग. उसके बाद आता है नंबर सिस्टम. बेसिकली इन कंप्यूटर वी हैव 4 नंबर सिस्टम्स. एक तो हमारा होता है डेसिमल, जिसको हम लोग अपने जनरल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. डेसिमल के बाद एक होता है बाइनरी, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है. उसके अलावा भी 2 लैंग्वेज यूज होती हैं, एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक है हेक्साडेसिमल. 3-4 को हम लोग देखते हैं. आज के डेट में हम देखेंगे नंबर सिस्टम में 2. Now we have learned that each key representing character, special symbol, functions, keys, etc. of the keyboard is internally mapped to ASCII coding following a encoding scheme. This encode value is further converted to the equivalent binary representation so that the computer can understand it. In figure 2.1, the code of the character A belongs to the decimal number system and its equivalent binary code. This okay, is that clear? Every number system has a set of unique characters आर द लिटरल्स. किसी भी नंबर सिस्टम में डेसिमल का मतलब, डेक का मतलब क्या होता है 10. इट इज बेसिकली 10 क्या रिप्रेजेंट करता है 0 to 9, ए टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स. द काउंट ऑफ दीज लिटरल इज कॉल्ड द रेडिक्स और द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. तो 10 का बेस क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का हम बेस लिखते हैं 10 बिकॉज देयर आर 10 डिफरेंट लिटरल्स. द 4 डिफरेंट नंबर्स. ऐसे हमें बाइनरी लिखना होगा तो हम बेस 8 लिखेंगे, ऑक्टल लिखना होगा तो बेस 8 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल लिखना होगा तो बेस 16 लिखेंगे, लाइक दैट. ओके, सो हियर इज द नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड द पोजिशनल नंबर
system because the value of each symbol, that is digit and the alphabet in a number, depends upon its position within the number. जैसे हमने लिखा 356, तो 6 की वैल्यू यूनिट पर है, 6 इज ओनली 6, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300. दिस इज पोजिशनल, ये यूनिट पर है, टेंथ पर है, ये हंड्रेड्स पर है, वो आप जानते होंगे. Number may also have a fractional part similar to a decimal numbers used by us. The symbol at the rightmost position in the integer part is given the number has position 0. The value of position, also called the position value, in the integer part increases from right to left. जैसे जैसे हम आते हैं वो इंक्रीज होता जाता है. ऑन द बेसिकली होता है क्या है, इसको पोजीशन पर हम 0 देते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं. क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वैल्यू निकालेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर दिस, दैट इज 0. 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1. 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2. नाउ कैलकुलेट this equivalent to 6, this equivalent to 50, this equivalent to 300. Okay. On the other hand, the first symbol in the fraction part of the number has position number -1, which decreases by 1 while reading fraction part from the left to right. जैसे हमने लिखा 5.36, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, यहाँ से -2 लिखेंगे. इधर जीरोस होता है, 1 होगा, 2 होगा, लाइक दैट. जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1. -1 मीन्स डिवाइडेड बाय 10, लाइक दैट. ऐसे ही 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, ऐसे वैल्यू कैलकुलेट होगी इसके, ये आप जानते होंगे. which decreases by 1 while reading fraction from this. Each symbol in a number has a positional value, which is computed using the position value and the base value of the number system. The symbol at position number 3 in a decimal system with base 10 has a position value 10 की power 3. Adding the product of the positional value and the symbol value results in the given number figure. This shows the computational decimal number of this. अब 123.45 को निकाल सकते हैं ऐसे. 125 देखिए यहाँ 3 का हो गया 10 पावर 0, 1 दिस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक दिस विल गेट दिस वैल्यू. ओके, सो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, और कल हम बात करेंगे यहाँ से डेसिमल नंबर सिस्टम से. Okay, then thank you very much.